लेंगे, बट अगर आप ऑप्टिमाइज कोड नहीं दोगे ना तो दे वोंट कंसीडर योर मतलब एप्लीकेशन। Because think about it, brute force code तो आज chat GPT भी लिख देगा आपके लिए ना। यस सर, वो smart, lean, optimized code is what will make you stand apart, right? एग्जैक्टली सर, वही होता है सर। कहीं अभी सिस्टम डिजाइन भी पूछ लेते हैं। मेरे को एक जगह पूछ लिया था उन्होंने, जावा से मतलब क्या हुआ था, एसक्यूएल का जॉइन क्वेरी पूछा था और फिर बोला था इसको आप जावा में इम्प्लीमेंट करो, देन एंड देयर। तो वो टफ पड़ गया था मुझे सर। Interesting. But most jobs will do a practical test, no? Yes sir, CSUA. of course. They will, right? Yes. Okay, no, good conversation, but I'm also keeping an eye. We have a few people coming in. Folks, don't worry. Session has not started. You're not missing anything. We're just catching up. We're just doing a little chit chat. So, क्या बोलते हैं? विशाल सर शुरू करें कि वेट करना है अभी? No, sir, we can start. Definitely. Like we have 13, 14 students, and Okay. the one who are ready to pitch are, I guess, Kanak, Shivansh, and who is the other one, Vishal? नहीं, इन दोनों का तो पता था मुझे, बाकी Okay, किसी ने all तो right. बोला नहीं मुझे। So ठीक they है, can pitch ठीक in, है। sir. Definitely. we can start. So let me set the context. So once again, welcome, of course. Glad this is last of our session in this series. Of course, you stay with the program with NASCOM Foundation with many more exciting things coming your way. But as far as the learning track is concerned, today is where we culminate this. Today we have two broad agenda items. There is some pitching that we'd like you to do for the purpose of learning, getting good feedback from peers and from the rest of us. Some of you wanted to make that pitch about a week ago, didn't have the time, so you can certainly make that. Plus, if anybody has been able to work on the go-to-market canvas that we talked about 2 days ago, even if it's rough, not very ready, it doesn't matter. If you want some quick feedback, we're happy to do it. So feedback on your presentations, either Prana presentation or the Prana plus GTM or only GTM, either way is fine. More than welcome. So please volunteer. Let Saurav know, and he will invite you to share the pitch deck. Second, this is also kind of an AMA open house session. So if you have any question, any doubt or something we've covered or not covered, maybe I'll do my best to answer your questions. So feel free. This is pitching to learn and an open Q&A as well. Okay, so we'll get started with the pitching, and the format is simple. You have about, depending on how much you're presenting, so I don't know, we'll see 5 to 10 minutes to present. I would love for others who are not presenting to pay very close attention. I want you guys, the rest of the people, to be the first ones to offer questions or comments. I will comment, Vishal will comment, Saurav will comment, but later. So please, don't switch off your mind when somebody else is presenting. Be alert, because also the way they're presenting and what they are presenting is also important to you, or maybe important to you. Okay, so let's stay with a small group. Let's stay alert and give each other as much constructive feedback as we can. With that, Saurav, go ahead. You can invite the first team, please. Thank you so much, sir. Shivansh, would you like to go first, or Kanak, would you like to? Yes, sir, I can. All right, great. Please, you can share your screen. I will just stop sharing. Just a small question, sir. Do I have to present the task 4 which was allotted, or a general presentation? I think general might task or is the last one, GTM wala, right? Yes, sir. I was asking for that. जो पिछली बार सबने present किया था, जो customer segment and हाँ, वो आपने present नहीं किया ना अभी तक? उस time पे नहीं किया था सर. आप कर लो, पूरा करो, फिर end to end करो. अगर आपने GTM में उसको end में add कर देना. Okay, sir. Sir, is my screen visible? No, we can just see ourselves. आपने हमारी window share कर दी. Yeah. That only I was asking. Now is it visible, sir? Yes. Now I can see task 4. Okay.
So hello everyone, I am Shivansh, and my other partner is Nishchay Mittal, and we are the team Navansh, and our product name is Cadro. So what is the problem statement? I'll tell you. It's like large public spaces need efficient, sustainable cleaning solutions that reduce reliance on manual labor, alongside innovative advertising methods that enhance visitor experience. So what we can understand from this is like basically in base terms, in market like malls and airports and etc. require, they need some solution for automatic cleaning. The solution is already present in foreign countries, but India is very new market for this segment, and very few players are there. And also what makes us different from the existing companies is that we are providing an dynamic advertisement play platform plus a, a method to a method for the brands to advertise their products or their showcase their advertisements. So when we talk about the customer segments, so the primary customers will be the facility managers and owner. The basically the segment will be B2B. So primary customers will be facility managers and owners, and advertising agencies and brands. Now, when we talk about the secondary customers, indirectly visitors and consumers are also our customers because they are the only one to whom we are presenting the ads, and they'll directly interacting with the ads. And cleaning service companies can also be our customer segment for third party cleaning and such things. So if we consider a customer persona, so we have Mr. Rakesh Sharma. He's 38 years old and he's a facility manager at commercial real estate. Let us consider here like a mall. So the key responsibility is that Netaji Subhash? Yes, NSP sir. Because sir, we did our survey there. So actually I did kept a reference for that. Okay, fair enough. Yeah. So the key responsibilities of Mr. Rakesh are he has to oversee the operations and maintenance of overall mall and also maintain the cleanliness standards. Along with that, he also he has to manage the overall expenditure and advertisement segment, and what brands are advertising, how the advertisement is going on. So these are the key basic responsibilities. The goals for him will be like to enhance the overall cleanliness and aesthetic appeal of the mall, and at the end the major goal is customer and visitor satisfaction. Also, he has to reduce operational cost, including those related to cleaning and maintenance. So these are some goals. Challenges, what he's finding challenging is like finding cleaning solutions that are both effective and environment friendly. So what here we talking about, like generally what is happening in India ki अभी जो चल रहा है वो मैनुअल लेबर से ज्यादा चल रहा है इन इंडिया. देयर आर मशीन्स बट वो भी मैनुअली कंट्रोल्ड है. एंड व्हेन वी डिड आवर सर्वे, सो we have this recorded for your reference. Wise when we asked them ki what is the issue you are facing, so they told us like um, we have the machines, but for each machine there has to be a dedicated person जो उस machine के लिए train होता है, and he has to control that throughout the day. So इसमें manual labor भी लग रही है, plus machine की cost जो machine costly आती है वो भी वो use हो रहा है. So both दोनों channels अभी चल रहे हैं simultaneously. एंड एक बहुत एक या दो ही जो अभी नॉन कंपनी जो मैंने सर्वे किया तब मेरे को दिखा जो एक रोबोटिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं. एंड फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया में करना थोड़ा टफ होता है बिकॉज एंट्री चैनल काफी डिफिकल्ट होता है. उन्हें या तो कुछ इस्टेब्लिश करना पड़ेगा अपना सेटअप यहाँ पर, क्योंकि वो डायरेक्टली वहां से यहाँ सेल नहीं कर सकते. प्लस कस्टमर सपोर्ट एंड जो भी अगर कुछ मेंटेनेंस या कुछ इशू आता है तो उसमें उन्हें प्रॉब्लम आएगी. सो हेयर इंडियन सॉल्यूशंस या लाइक जैसे स्टार्टअप्स कैन कम वेरी, मतलब हम इजीली से अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे, though there will be competition, but yeah, we have that space. So if we like say what will be the channels or something, digital channels to LinkedIn, email marketing, webinars, online social media advertisings. Physical channels जो हमारे key area of promotion और channel होंगे like trade shows, conferences में अपनी presence बनाना, networking events, corporate events और industry partnerships. So
This was the basic understanding. I hope I was a bit clear about that. And ठीक है. sir, Now, shall I come to honey, the- take this forward. No, take this forward. So, Okay. अच्छा आ रहा है यहाँ पे. ठीक है. You will answer the question here. I think just pause. Keep that Word file open, please. I'm going to invite some Last questions one, and sir. comment. The other document. Okay. So let's maybe give you some feedback here before we look at the canvas. Okay, everybody. You're seeing the task here. You heard Shivansh describe it. Look at the problem. Do you have any observation on the problem statement on number 1? Remember, what is the definition of a problem? Sir, is it to me? Hi, anybody. We said a problem. How do you write a problem statement? Remember, we've taken some examples. Problem should not be a fact, should not be an opinion, should not be a solution. It should sound like a problem. Is this sounding like a problem or problem plus other things? Sir, problem plus need. Need in a sense like थोड़ा आपने सोल्यूशन डाल दिया इसमें. अब शिवांश आप भी ट्राई करिए. सिर्फ प्रॉब्लम बताइए. आज प्रॉब्लम क्या है? आज बड़ी पब्लिक स्पेसेस की क्या दिक्कत है? आप बताइए. ये अभी जो लिखा है 2 मिनट के लिए भूल जाइए. बताइए दिक्कत क्या है? You already talk to people. So they face issues in efficient cleaning. ठीक है. And revenue generation की एक missed opportunity होती है. Like by जैसे अगर वो advertisement करते हैं तो एक revenue generation एक cycle generate होती है. उसको वो एक missed opportunity है. नहीं, वो आपके जो facility manager है उसकी revenue की responsibility है. आप facility manager के पास जाओगे, बोलोगे आपकी क्या दिक्कत है? वो 2-3 चीजें क्या बोलेगा आपको? सोचिए. आपने ठीक बोला. First is the cleaning obviously. And अच्छी क्वालिटी ऑफ क्लीनिंग होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए. 2 चीजें. मतलब क्वालिटी में कोई मतलब कोई स्पॉट नहीं छूटना चाहिए और अफोर्डेबल होनी चाहिए. Yes sir, definitely. वो आज कैसे करें उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉल या मेरा पब्लिक स्पिक एंड स्पैन रहे. ओके वाह. सर क्लीनलीनेस होनी चाहिए सबसे टॉप प्रायोरिटी. अगेन ये डिमांड, ये तो नीड है उसकी. अब प्रॉब्लम क्या है बताइए. सर सॉल्यूशन नहीं है. नहीं ये प्रॉब्लम सी या जैसे हम बोलते हैं ना द ऑपोजिट का मतलब नॉट आपका सॉल्यूशन. योर सॉल्यूशन कांट बी एन ऑपोजिट ऑफ नॉट हैविंग अ सॉल्यूशन. ये आपने तो नैंड गेट बना दिया इसका. बताइए. सॉरी बताइए. सर एक्चुअली आई वाज सेइंग कि मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि सफाई करनी है. मेन प्रॉब्लम ये मतलब जो मेरे को लग रहा है वो ये होनी चाहिए कि लोगों को इतना एजुकेट करना चाहिए, चाहे वो मॉल है चाहे वो कहीं पे भी है, कि अगर कोई भी कूड़ा फेंक रहा है, कुछ भी फेंक रहा है, कुछ खाया उन्होंने, कुछ रैपर है, तो अभी भी आई थिंक 70 to 80% वही लोग हैं जो वो वहीं फेंक देंगे. वो ये सोचते भी नहीं है एक बार भी कि ठीक है हम डस्टबिन देखेंगे या हम अपने बैग में रख लेते हैं. बहुत कम आई थिंक 20% लोग ही हैं जो ये सोचते हैं कि ठीक है हम अपने बैग में रख लेते हैं ये. तो आई थिंक मेन प्रॉब्लम तो नहीं है ये, बट एक इसकी प्रॉब्लम बन सकती है कि एजुकेट करना लोगों को क्लीन रखने के लिए. मतलब ऑब्वियसली गंदगी बहुत सारे फैक्टर्स और भी चीजों की वजह से हो सकती है. सिर्फ एक यही पर्सपेक्टिव नहीं है कि लोग कर रहे हैं, हवा एनवायरनमेंट की वजह से भी बहुत सारे और भी पर्सपेक्टिव हैं. बहुत बढ़िया. आपने बहुत अच्छा है. तो एक्चुअली कनक आप जिस कोर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम, पर शिवांश की शायद वो कोर प्रॉब्लम नहीं है. बट बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन है. दोनों सेपरेट प्रॉब्लम मैं स्टेट करता हूँ. देखिए अगर आप प्रॉब्लम ठीक से समझे ना, सोल्यूशन हट के निकलते हैं. जैसे शिवांश की मैं कोशिश करता हूँ. शिवांश की प्रॉब्लम है कि मॉल्स या पब्लिक स्पेसेस को साफ रखना बहुत बॉदरसम है उनके लिए, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली अफेयर है और बहुत बार बार करना पड़ता है क्योंकि यूजेज ज्यादा है और लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं है. अब आपसे कनेक्ट हो रहा है. आपकी प्रॉब्लम ये है लोग सोशली कॉन्शियस नहीं है, चाहे वो मॉल है या सड़क है, वो कूड़ा करका कहीं भी फेंक देते हैं.
तो ये तो सेपरेट प्रॉब्लम है। थोड़ा ओवरलैप है क्योंकि अगर बिहेवियर आपका कूड़ा फेंकेगा वो मॉल में भी फेंकोगे आप। बट अगर आपकी कोर प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस आर नॉट क्लीनलीनेस ओरिएंटेड, दे थ्रो गार्बेज वेयर एवर, उसके अलग सोल्यूशन होती है। अवेयरनेस इज पार्ट ऑफ इट। आप कुछ भी कर सकते हो, आप अवेयरनेस कर सकते हो, डस्टबिन कर सकते हो, रोबोट लगा सकते हो, ऑटोमेटिक क्लीनिंग मशीन लगा सकते हो सड़कों पे, बहुत कुछ कर सकते हो। वो कहीं और डायरेक्शन में चला जाएगा। मैं नहीं कह रहा वो गलत है, इट डिपेंड करता है आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी डिस्कशन है। शिवांश, आपको प्रॉब्लम अपनी बहुत क्रिस्पली लिखनी है Understood, sir. आपके दिमाग में भी आई कैन मेक आउट, वो आई नहीं है इतनी क्लियर। Yeah, I understood it, sir. यू गॉट द पॉइंट, राइट? वेरी गुड। Yes, exactly, sir. अब ये बताइए थोड़ा नीचे आके, किसी भी, चाहे आप उसके फैसिलिटी मैनेजर से बात करें या किसी मॉल के जनरल मैनेजर से बात करें, उनका, आपने बहुत अच्छी एक वर्ड यूज किया था, उनका गोल क्या होता है सबका? एक मॉल का गोल क्या है? Sir, when we did our survey, like हम NSP जो मॉल है यहाँ पैसिफिक, इस पे गए थे, and we asked, he was general manager at that place. So हमने उनसे एक सर्वे कंडक्ट किया, क्वेश्चनर्स पूछे, तो उन्होंने हमें क्लियरली स्टेट किया कि अभी जो सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हैं वो अभी जो करंटली है वो उसके लिए भी मैनुअल लेबर चाहिए होती है, एंड जो ऑटोमेटिक क्लीनिंग में है वो बहुत ही कम है, जो अभी तक उस मतलब वो मार्केट को कैप्चर अभी इजीली इतना नहीं हो पाया है, बिकॉज बहुत कम प्लेयर्स हैं इस मार्केट में। सो व्हाट ही टोल्ड अस कि एक डेडिकेटेड पर्सन चाहिए होता है एक मशीन के लिए, एंड देन वो उससे पहले वो ट्रेन होता है उस मशीन के लिए, देन वो पूरा सिस्टम पूरा क्लीनिंग करता है। So this was the main issue, and he was, and we also asked him कि if some robotic solutions और वो आते हैं, and what is the interest कि कितने percentage पे मतलब malls या वो उनको लेना चाहेंगे। So he was pretty interested कि like if solution comes, malls will definitely invest in that. So हमने जो किया उससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि गैप काफी है अभी मार्केट में सॉल्यूशंस में। ठीक है, इसका आपको एक दो और मैं एंगल आपको देना चाहता हूँ, सबको, जो भी सब सुन रहे हैं। हाउ डिसीजंस आर मेड इन, क्योंकि आपने B2B बोला है ऑर्गेनाइजेशन में। मान लीजिए आप इस मॉल के मैनेजर हैं, शिवांश आप हैं, आप कन्विंस हो गए कि स्टार्टअप निश्चय ने आपको पिच किया, आप कन्विंस हो गए कुछ करते हैं हम लोग। अब मेरे पास है, मैं मॉल का ओनर हूँ मान लीजिए, ठीक है, अब ओनर हूँ मैं, सोचिए मेरे दिमाग में नंबर 1 चीज मॉल चलाने में क्या है, गेस कर सकते हैं आप? मेरा गोल क्या है मॉल चलाने में? मॉल रेवेन्यू जनरेशन। थैंक यू। मेरा गोल सफाई रखना नहीं है, बट वो सफाई जरूरी है। मेरा नंबर 1 गोल है मेरी फुटफॉल्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि दो प्रॉब्लम है, क्योंकि मॉल आजकल बहुत हो गई हैं, लोग इधर उधर जाते हैं, लोग कहीं पे भी नहीं जाते, ई-कॉमर्स कर लेते हैं बैठ के। अगर फुटफॉल नहीं होगी, मुझे रेंट नहीं मिलेगा स्टारबक्स से या बाकी के। मेरा नंबर 1 मुद्दा है फुटफॉल बढ़ाना। अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, फुटफॉल क्यों बढ़ती है? फुटफॉल बढ़ती है अगर आप सिर्फ सफाई से फुटफॉल नहीं बढ़ेगी। शिवांश, कनक, आप सोचिए जरा, आप चमकते ही मॉल में चले जाएं एक बार, दूसरी बार नहीं जाएंगे, क्यों? गैस करिए। सर ओवरऑल मॉल एस्थेटिक प्लस जो मतलब कितना ब्रांड्स है वहाँ पे, प्लस कितना इंटरेक्टिव, मतलब इंटरेक्टिव इन सेंस कितना अपीलिंग है फॉर कस्टमर्स। मान लीजिए मॉल बहुत अपीलिंग है, साफ सुथरी, चमकदार, क्लीन, कूल, 45 डिग्री में भी मजेदार है, उसमें कोई इशू नहीं है, चमक रही है, पर आप नहीं जाओगे अगली बार, क्यों? होता नहीं है ऐसे? ये होता नहीं कई बार आप अच्छे स्टोर में जाते हैं, स्टोर अच्छा है, पर आपको जो चीज चाहिए वो स्टोर में नहीं है, अब क्यों जाओ? कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए कि कस्टमर अगर एक बार मॉल में गया है तो उसको वहां जाने का मतलब दोबारा मन करे। वो चीज एक होनी चाहिए मॉल के अंदर की या तो ब्रांड्स बहुत अच्छी हो या मतलब फूड कोर्ट हो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्सीलेंट पॉइंट, और एक्सीलेंट। जिनका शॉप है वो उनके स्टाफ भी कोऑपरेटिव हो कस्टमर्स के साथ, वो भी तो एक इम्पोर्टेंट। आई एग्री। तो अब देखिए, आपको एसेंशियली जो भी पैसा देगा ना, वो जनरल मैनेजर या फैसिलिटी मैनेजर नहीं देगा, सीईओ को चेक लिखना पड़ेगा। एज ए सीईओ, अगर आप अपना, अब आप स्टोरी बनाइए, देखिए आपकी स्टोरी क्या होनी चाहिए। आपकी ये जो पिच आप कर रहे हैं, एक्चुअली एट सम पॉइंट सीईओ को पिच करना पड़ेगा आपको। ऐसा आप क्या करेंगे
जिससे आपकी फुटफॉल्स बढ़े और कस्टमर एक्सपीरियंस वाव हो जाए। उससे कनेक्ट करके आता है, हाँ, मॉल शुड बी स्पिक एंड स्पैन एट ऑल टाइम, चाहे वो सुबह 9 बजे हो या रात के 11:30 बजे हो। I have a solution by which your mall will look attractive at lower cost. अभी जो हमने जी एक्सरसाइज की है, सेल पिच की है आपने। आप सीईओ को ये पिच करेंगे, फैसिलिटीज मैनेजर कुछ और पिच करेंगे, उसके दिमाग में फुटफॉल शायद नहीं है। वो कहता है भाई मेरे को सीईओ से डांट पड़ती है अगर उनके धब्बा दिख जाता है कहीं पे बाथरूम में। आई गॉट फायर्ड फ्रॉम द लास्ट जॉब बिकॉज वो फर्श पे कुछ गिरा हुआ था एंड समबडी स्लिप्ड ऑन। की कंसर्न दूसरी, वो कहेगा इज इट फास्ट, इज इट अफोर्डेबल, वो हाउ ऑफन इन अ डे, अगर अभी मैं दिन में 4 बार करता हूँ तो 4 बार करना पड़ेगा कि 10 बार करना पड़ेगा, उसके कंसर्न अलग हैं। मैं सिर्फ ये लंबी डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने एक कमेंट किया था कि किसी भी कस्टमर से आप बात करेंगे, हर कस्टमर का पर्सपेक्टिव और गोल अलग होता है एंड यू हैव टू बी एबल टू एड्रेस द कंसर्न। सफाई तो आप करोगे ही, वो तो गिवन है। अगर आपका सोल्यूशन, और मुझे नहीं पता अभी सोल्यूशन क्या है, आपका सोल्यूशन अगर सफाई नहीं कर पाएगा, बाय द वे नेक्स्ट लेवल कॉन्वर्सेशन होगी ही नहीं। सिंपल है ना। आप बोल रहे रोबोट है, वैक्यूम है, जो भी है आपका, अगर वो झाड़ू से ज्यादा इफेक्टिव नहीं है तो आपका गाड़ी नहीं चलेगी। और उसके अलावा भी कहानी बिल्ड करनी पड़ती है। हाउ डू यू मेक समबडी अवेयर ऑफ व्हाट यू डूइंग? दैट इज वन डिस्कशन। द अदर डिस्कशन I want to, again, I hope everybody is listening. When you talk to potential customers, and I do recommend talking more than surveying, एक क्वेश्चन हमें हमेशा पूछना चाहिए जो शायद आपकी बातों में आ गया शिवांश, बट मैं एक्सप्लिसिटली यू आर मेकिंग अ पॉइंट ऑफ इट। जब उनकी प्रॉब्लम आपकी क्या, आप आज की डेट में आपके सफाई रिलेटेड क्या प्रॉब्लम, आप ये नहीं पूछोगे आपको रोबोट चाहिए कि नहीं, तो सोल्यूशन में चले गया। आपकी दिक्कत क्या है, कॉस्ट इश्यूज क्या हैं, एम्प्लॉय इश्यूज क्या हैं, सफाई की वजह से आपको कोई विजिटर का प्रॉब्लम आ रही है, आपका दिक्कतें क्या हैं, आपको ये समझोगे। जब ये कॉन्वर्सेशन हो जाती है, टिपिकली द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन इज आप आज ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हो। ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। हो गया भाई मेरी टीम है, वो टीम ही करती है जो करती है, मे बी। एक्चुअली एक वेंडर आया था मेरे पास, वो कह रहा था मेरे पास अच्छी अच्छी मशीनें हैं, लास्ट ईयर हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया 6 महीने पर, चला नहीं। क्यों नहीं चला? वट एवर। So whenever you speak to customers, focus is what is your problem? Focus is alternatives. How are you currently solving? Because उससे आपको आइडियाज आएंगे, अरे भाई ये तो ट्राई कर चुके हैं, नहीं चला, कुछ और सोचना चाहिए। तो देखिए अभी कोई सोल्यूशन की कोई बात नहीं है। आई रियली डोंट नो व्हाट योर सोल्यूशन इज, ऑनेस्टली व्हाट मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या है। I'll pause. Any comment on that? Okay, Shivansh, you're okay with this approach? Yes, sir. Understood. ठीक है, thank you. Let's see your canvas. So is it visible? Yes. Walk us through it. Okay, so, sir, if shall I skip the customer persona? Like, I've already बोल चुके हो आप, correct? okay, so we'll begin with competition. So currently, when I search about it online, so there's a company Peppermint Robotics, and one is Bharti Robotic System. So I also try to approach them for understanding what exactly they are doing, but as such कुछ specific response नहीं आया. So these are the direct competitors which are who are making robotic systems, so robotic machines basically. And other competitors are like traditional cleaning machines जो बना रहे हैं. Also international brands can be our competitors when we go to the international market. So these are competition. एंड आउटरीच चैनल्स में हम जैसे मैंने बताया, चैनल्स तुम्हारे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग से हम अपनी ब्रांड की प्रेजेंस बनाएंगे, बिकॉज जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल एक मशीन है। सो वो उसकी फिजिकल प्रेजेंस को दिखाने के लिए हमें एक जैसे इवेंट्स, एग्जीबिशंस, कॉन्फ्रेंसेज इनमें जाना होगा, जहाँ पर जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं या कंपनी ओनर्स या जो भी आ रहे हैं, उनको एक हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होकर शोकेस हो पाए। So that is our channel. एंड सोशल मीडिया के लिए आप वीडियोस वगैरह बना लोगे, तो दिखाओगे, वो डेमोंस्ट्रेट करो कैसे होता है। करेक्ट, that is for the online presence and like एक presence बनाने के लिए नेट पे। ठीक है।
And okay, so differentiated benefits which I'll जो मैं अब जिसके थ्रू मैं शायद समझा पाऊंगी what our product is. So basically it will be a machine, automatic robotic cleaning machine for for commercial spaces like malls, airports, and offices can also be considered here. So the main feature will be autonomous activities. All the activities from cleaning to navigation to everything will be autonomous. So it will be a self-dependent machine. Also, what we are thinking is to do a self-docking charging mechanism, because we don't want to anybody to कि वो किसी को charging पे लगा रहे हैं then one remove कर रहे हैं. So and जो second point जो हमारा main है, which will be a creative dynamic ad display. Like हम brands को या directly हम malls को एक opportunity दे रहे हैं कि वो अपने brands को हमारी machine पे display कर सके. Like जैसे एक display area provide करेंगे and our software will be intelligent कि वो dual operation में चल सकता है. Like if we assign कि इतने time तक ये ad चलना है तो it can also be there. दूसरा mechanism can be कि हम dynamic ad display करें depending on the footfall and the interest area. Like हमें mall का पूरा data हमारे पास होता होगा कि किस जगह पे कितना क्या percentage buying है या किस तरीके चल रहा है, तो उस पे हम dynamic ad displays करा सकते हैं. I've also mentioned this in my task 5, I guess, which was allotted to us. उसमें एक user journey पे सब mentioned है. Very good. Shivansh, can I ask you a question? हाँ, नहीं समझ में आ गया. Can I ask you a couple of questions? Yes, sir. This sounds like iRobot to me. iRobot, sir. You know what iRobot is? Not Autonomous specifically. self-docking cleaning robot. आप Google करो उसको. I've seen it in people's homes. मैंने ऑफिस में नहीं देखा, घरों में 3-4 जगह देखा है. थोड़ा सा डिवाइस है, अपने आप चलता रहता है, पूरा दिन सफाई करता रहता है. छोटे वाला होता है. इतना बड़ा, हाँ, about 18 inch diameter. Anyway, okay, I'm just flagging it. आप थोड़ी रिसर्च कर लेना इस पे. I don't know कौन बनाता है. iRobot is a well-known brand. But you know, आपने एक और बात बोली, again I want everybody to listen. Maybe there are two solutions in what you're saying, and maybe one of them is an independent solution. आपने जो बोला उससे trigger आया. I'm just sharing. I'm not saying you should do it. आपने जो बोला ना dynamic ads being displayed, right? पहली बात तो ये moving device है. अभी वो Van Heusen के सामने खड़ा है. Tomorrow it will stand in front of Nalli Sarees. We don't know. Or tomorrow in an hour. तो जब वो Van Heusen के सामने है, it knows where it is. Ads clothing की आनी शुरू हो जाएंगे आपको. जब नल्ली क्या जाएगा, साड़ी से सूट्स के एड लग जाएंगी, क्लोज टू इट, सो दैट इट इज मोर कस्टमाइज्ड टू वेयर इट इज. जस्ट अ थॉट. आई एम सेइंग दैट इटसेल्फ इज अ स्टार्टअप आइडिया. Yes, डायनामिक एड, वो सफाई करे ना करे, एड अगर डायनामिक देगा तो लोग, इट्स मोर कस्टमाइज्ड. डेटा है हमारे पास. आई एम जस्ट शेयरिंग. Yes, sir. This is the like that way only said dual approach कि जैसे जो सिंगल अप्रोच में भी है कि एक ही ऐड है जो इतने टाइम तक फिक्स है. अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो कि इतने टाइम हमारा ऐड चलना चाहिए फॉर दिस टाइमिंग. लाइक जैसे आई गॉट दिस आइडिया फ्रॉम, जैसे न्यूयॉर्क में जो बिलबोर्ड्स होते हैं उन पे एक ऑलरेडी होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक हमारा ऐड चलना चाहिए, उसका इतना अमाउंट होता है. सो वो दैट इज अ सिंगल अप्रोच. डायनामिक कैन बी आवर मेजर डिफरेंशिएटर, बिकॉज इसके लिए जैसे AI पूरा डायनामिक एड डिस्प्ले सिस्टम बनेगा. सो दिस इज आवर मेजर डिफरेंशिएटर. एंड जो भी करेक्ट, उसमें मॉल का जीपीएस डेटा डालना पड़ेगा या उसमें विजुअल इंटेलिजेंस डालनी पड़ेगी कि रोबोट इटसेल्फ कहेगा ये वैन ह्यूजन का स्टोर है कि स्टारबक्स है, एंड अकॉर्डिंगली यू नो वो देखना पड़ेगा प्रोडक्ट की डिटेल का. बट आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट. यस सर, थैंक यू सर. सो शैल आई कंटिन्यू सर? हाँ प्लीज. Okay, so sales and support for now we have like trained sales teams तो होगी definitely. 24/7 customer support, online resource troubleshooting, like हम हर जगह जाके इनका सॉफ्टवेयर ट्रबल शूट नहीं कर सकते, सो ऑनलाइन सर्वर्स के थ्रू ट्रबल शूट. एंड दिस इज द मेजर अभी के लिए तो. एंड जब प्रोडक्ट एक थोड़ा लाइन में आएगा तो डेफिनेटली दिस विल डेवलप. प्राइसिंग रेवेन्यू मॉडल
ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेटिटिव प्राइसिंग तो रहेगी जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके साथ. सो रेवेन्यू मॉडल कैन बी वन टाइम सेल्स ऑफ मशीन्स, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, लाइक जैसे जो भी हम सब्सक्रिप्शंस पे अपना सॉफ्टवेयर और जो हमारा मैकेनिज्म वो प्रोवाइड कराएंगे टू दी मैंने मतलब मॉल्स बेसिकली जो भी हर सिस्टम होगा उसका सॉफ्टवेयर पार्ट. सो पे पर यूजर भी हो सकता है. दैट ये अप्रोच मैं जब कल बनाया तो ही मेरे को आइडिया आई. सो आई नीड सम गाइडेंस ऑन दैट इन फ्यूचर आल्सो. एंड रेवेन्यू शेयरिंग मेजर रेवेन्यू सेकंड रेवेन्यू मॉडल, लाइक जो हम एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू शेयर करेंगे. सो गुड दिस इज पॉइंट. शिवांश, उसको एक्चुअली आप एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ही बोलिए. हमने डिस्कस किया था राइट कि जोमेटो या अमेजोन मल्टीपल स्ट्रीम्स होते हैं राइट. उनकी कमीशन बेस्ड मॉडल है, सब्सक्रिप्शन है एंड एड बेस्ड. तो एड जस्ट से इट एड बेस्ड. ओके सर. सो एक्टिविटी प्लान सर, इसमें मेरे को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग थोड़ी नहीं आ पाई. तो मैंने अभी ये लिखा है मार्केट रिसर्च, सोशल मीडिया प्रेजेंस, टेस्टिंग फीडबैक व्हेन द प्रोटोटाइप या एमवीपी इज बिल्ड. सो इसके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव प्लान करना है. हाँ, तो एक्टिविटी एसेंशियली सेड आपको आपकी गो टू मार्केट एक्टिविटी कब शुरू होगी. ऑब्वियसली जब आप थोड़ा प्रोटोटाइप रेडी होने लग जाएगा तो कुछ उसका बेसिक इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया कैंपेन, पीआर शुरू करना पड़ेगा. तो दैट्स व्हाट दिस इज. इट्स लिटिल अर्ली राइट नाउ. टिपिकली अराउंड प्रोटोटाइप, मे बी नॉट द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्जन ऑफ प्रोटोटाइप, जो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा when you can make a video of it and it looks nice and functioning well, then you start talking about it. तो उसके बाद then proper plan है, month और month क्या कर रहे हो, week on week क्या कर रहे हो. Yes sir. So what will be our goals, KPIs कि first of all जब first year of operations होंगे तो उसमें हमें कुछ set of malls and airports जो हमें acquire करने होंगे. अभी ये हम नहीं कह सकते because हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा नहीं है of existing जो कंपनीज हैं इस फील्ड में कि वो कितना कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ओपनली इतना शेयर नहीं होती चीज़ें अभी के सिनेरियो में. सो इसलिए इसको वैल्यू टर्म्स में नहीं बोल सकते. प्लस व्हाट वी आर थिंकिंग कि हमें ऑब्वियसली कम जो मार्केट है वो तो पेनिट्रेट करनी है बिकॉज एग्जिस्टेंस इज द की हियर. एंड कस्टमर एक्सपीरियंस होगा सर बेसिकली मशीन का जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पार्ट है, लाइक फॉर दी जो ओनर्स या जो इसको हैंडल करेंगे उनके लिए सॉफ्टवेयर पार्ट का एक इजी एक्सपीरियंस होना चाहिए. एंड जो कस्टमर्स सेकंड कस्टमर्स है लाइक आवर विजिटर्स जो है मॉल्स में, उनको एक अपीलिंग एक अच्छी मशीन दिखनी चाहिए. सो एंड फोकस विल बी ऑन सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस. और फीडबैक हम रेगुलरली कलेक्ट करेंगे फॉर कि कितनी क्लीनिंग एफिशिएंटली हो रही है ऑन दी बेसिस ऑफ कि कितना फुटफॉल है, एवरीथिंग ऑन एड्स जो रन करा रहे हैं उनका क्या एक रिटर्न आ रहा है कि करेक्ट कि कितना एड शो हुआ एंड कितना कस्टमर कन्वेंशन रेट बढ़ रहा है. And warranty maintenance will be obviously there. So partners will be our cleaning service and material providers जिनसे हम cleaning service material लेंगे. Advertising agencies can also be our partners जो हमारे product को एक outsource भी करा सकते हैं. And facility management companies which are basically the malls and everything. So this is a basic layout. Okay, I think Shivansh, very well done. Really, your canvas, it needs a little work, but given that you're early stage in your idea, well done. So kudos. Thank you, sir. Others, please, if there's any questions, comments, something you like, something you don't understand, please feel free to ask. Okay, thank you again, Shivansh, and Nishchay, who may not be on the call, right? Yeah, sir, he's not there. Okay, tell him, well done. All the best. And who would like to go next? Can you take? I Okay. just give me a second. I will share my screen.
So Okay, is my screen visible? Visible. You can put it in a presentation mode, please. Yeah. Okay, so my project name is Auto Crash Alert, and हम नाम से समझ पा रहे हैं ऑटो क्रैश अलर्ट का था. ऑटो मींस ऑटोमेटिक क्रैश अलर्ट की एक्सीडेंट के लिए कुछ रिलेटेड प्रोजेक्ट है. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि आज के टाइम में या जितना भी अब तक चलता आ रहा है, कार एक्सीडेंट जो है वो एक मेजर पब्लिक सेफ्टी इशू है. मैंने कुछ नंबर्स गूगल से निकाले थे. 1.35 मिलियन डेथ्स जो है वो ग्लोबली होती है हर साल ड्यू टू कार एक्सीडेंट, और इंडिया में 2019 में 1,51,000 डेथ हुई थी कार एक्सीडेंट की वजह से. तो मेन प्रॉब्लम कहाँ आता है? कार एक्सीडेंट होने के बाद 3-4 फैक्टर्स है जिसकी वजह से डेथ रेट बढ़ रहे हैं एज कम्पेयर टू कम होने की बजाय. तो पहला हमारा इशू है कि रिस्पॉन्स टाइम ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज बहुत कम है. कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आ पाती. बिजी एरियाज में यहाँ तक कि बिजी एरियाज में जहाँ पे एम्बुलेंस बहुत जल्दी मिल जानी चाहिए वहां पे भी इतनी प्रॉब्लम आती है. सो सेकेंड फैक्टर इज डिले इन रिस्पॉन्स टाइम, कि डिले हो जाती है रिमोट एरिया बिजी एरियाज में भी. एंड थर्ड इज सर्वाइवल रेट फॉर कार एक्सीडेंट विक्टिम डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली आफ्टर द फर्स्ट आवर. तो ये सब मतलब आई थिंक इसका यूज एक अर्जेंट नीड है आज के टाइम पे इसको करने के लिए. तो इसका एक मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि इसको शुरू करने का क्या रीजन था. तो बेसिकली क्या हुआ था, मेरी फैमिली में मेरा ब्रदर था जो बैंगलोर रहता था. उसकी डेथ हो गई थी ड्यू टू कार एक्सीडेंट, और उसे टाइम पे एम्बुलेंस नहीं आ पाई थी. तो एक मेजर रीजन है मेरा ये शुरू करने का. सॉरी to hear that, Kanak. Sorry to hear that, Kanak. And I know it's very personal to you, so our full support. Just go back, please, Kanak. हम थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे या एंड में करेंगे? यस सर, अभी करते चलते हैं. ठीक है. तो अगेन मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे क्वेश्चन या कमेंट्स इनवाइट कर रहा हूँ बाकियों से. जैसे कनक ने बोला वैसे हमें समझ में आ गया, बट आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार पढ़िए जरा. Car accidents are a major public safety issue with millions of people dying or suffering injuries every year worldwide. ये कॉन्टेक्स्ट है. और अब इंडिया में कितने परसेंटेज हो रही है वर्ल्ड की डेथ्स? 1.35 मिलियन. इंडिया में 1,51,000. तो कितने परसेंट है एंड इंडिया में? ग्लोब परसेंटेज करो बात करो क्विक. There's a reason I'm asking. You can improve your story. कितने परसेंटेज हुआ है? ओके. इंडिया, हाँ बोलो. अब बोलो. तकरीबन वर्ल्ड का 11% इंडिया में हो रहा है. पूरी दुनिया का है. अगर मैं आपके नंबर देख रहा हूँ, मेरे पास डेटा नहीं है. I'm looking at your data. I think when you convey, no, there are so many million. India only as one country contributes 11%, which is a huge number, right? So it's a good story. The other thing, आपकी ना अगर मैं प्रॉब्लम समझूं, आपने बहुत सारी चीजें एक दो चीजें कहना आपने बोली. हमारी जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये हमारे यहाँ बहुत एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं. ओके. एंड कॉन्टेक्स्ट ये और फैक्ट है कि अगर टाइम पे उसको उनको हेल्प नहीं मिली जाए तो ये लॉस ऑफ लाइफ. ये फैक्ट्स हैं. ये कहीं पे भी वैलिड होंगे, इंडिया के लिए नहीं. प्रॉब्लम आपकी क्या है? दैट रिस्पॉन्स एंड हेल्प, मेडिकल और अदरवाइज, ड्यूरिंग एक्सीडेंट इज नॉट ऑन टाइम. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. यस, सिंपल प्रॉब्लम है आपकी. कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा है. सिटीज हैं, क्राउडेड हैं, बहुत लोग हैं, जल्दी नहीं मिलता तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है. बट प्रॉब्लम क्या है? जिसको हेल्प चाहिए टाइमली हेल्प नहीं मिलती है. यस सर. ठीक मैं समझाऊं? तो मे बी यू कैन अगेन कमेंट फॉर एवरीबॉडी. अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी यू कैन जस्ट सो दैट्स इजियर. कॉन्टेक्स्ट और प्रॉब्लम दो में स्प्लिट कर सकते हो. इट्स ऑलराइट. इट्स अ प्रेजेंटेशन इशू. ठीक है करण, लेट्स गो. Our solution is कि हम एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे, डेवलप करेंगे जो
क्या करेगा कि टाइमली बताएगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। और मतलब मैं आपको आगे मेरा पूरा एक फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है, उसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये हमारा मेन सॉल्यूशन है कि हम एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं, इट्स अ कार एप्लीकेशन जो कार के डैशबोर्ड में लगेगा। तो वो क्या करेगा कि एक्सीडेंट डिटेक्ट करेगा और आसपास के 5 किलोमीटर की रेंज में जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे उनको वो एक सिग्नल पहुंचाएगा कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, लोकेशन देगा वो कि इधर हुआ है, ताकि क्योंकि मेन प्रॉब्लम आज के टाइम पे क्या होती है, एक्सीडेंट हुआ, अगर हम लोग भी सामने से जा रहे होते तो हम क्या कर देते हैं, पुलिस को कॉल कर देते हैं, एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं, बट हम उनको बता देते हैं कि ये लोकेशन है, हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देते हैं उन्हें, क्योंकि सबको अपने अपने काम है, सब अपना आगे जा रहे हैं, मोस्टली लोग नहीं रुकते हैं कि भाई उन्होंने फोन कर दिया, उनको लगता है कि ठीक है उनकी जिम्मेवारी हो गई पूरी। कुछ लोग होते हैं जो वहीं रुकते हैं, बट कहीं ना कहीं एग्जैक्ट लोकेशन मिलना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारे इसमें क्या बता रहा है कि जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी वो चली जाएगी हॉस्पिटल्स को जो 5 किलोमीटर की रेंज में होंगे। सो सेकंड हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेशन होगा कार में वो स्टार्ट होगा। जब ये एप्लीकेशन डलेगा कार के अंदर तो उसमें वो लॉग इन मांगेगा कि तुम्हें साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद हम 5 फैमिली मेंबर्स के नंबर उसके अंदर इनबिल्ट डलवाएंगे उनसे कि वो खुद डालेंगे जब हम उसके अंदर एप्लीकेशन डलवा रहे कार के अंदर। तो लॉगिन हो गया, लॉगिन के बाद जहां पे भी गाड़ी जाएगी, जहां भी जा रही है तो वो जीपीएस से कनेक्ट हो रही है, तो हमारे पास उसकी लोकेशन हर टाइम होगी कि वो कहीं भी जा रही है, तो वो कनेक्ट हो जाएगा जीपीएस से, लोकेशन हमारे पास आ गई। तो व्हाट इफ अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हमारे पास क्या होगा, नियर बाय हॉस्पिटल्स के पास एक मैसेज चला जाएगा कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है। व्हाट इफ कि अगर एक्सीडेंट इतना मेजर नहीं हुआ कि चलो कुछ टकरा गया, तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, बट एक्सीडेंट इतना मेजर नहीं था, बहुत छोटा सा एक्सीडेंट था, तो हम एक और उसके अंदर फैसिलिटी डालेंगे कि हम उसको कैंसिल कर पाएंगे 5 मिनट्स में, कि अगर इतना मेजर नहीं है तो हम खुद डैशबोर्ड में डाल सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और अगर कैंसिल नहीं हुई 5 मिनट तक तो हॉस्पिटल, जैसे उबर सिस्टम में होता है, जोमेटो में होता है कि हमने ऑर्डर किया, आसपास उस रेस्टोरेंट के जितने भी आसपास लोग होंगे कलेक्ट करने वाले डिलीवरी बॉय, कोई भी एक एक्सेप्ट कर लेता है, बाकी सबके पास कैंसिल हो जाता है। सेम सिस्टम हमारा इसमें डलेगा कि सारे हॉस्पिटल्स के पास होगा, जिसके पास बेड होगा, जिसके पास एम्बुलेंस होगी और जो सबसे नियरेस्ट होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, और बाकी सबके पास खुद कैंसिल हो जाएगा। इसकी वजह से ये भी होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स की एम्बुलेंस एक जगह नहीं आ रही, इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच रही है। तो ये हमारा मेन एप्लीकेशन था, और इसको अगर आप हमसे पूछोगे कि अभी अच्छा, ऑलरेडी कोई हाँ, नहीं सर, मैं थोड़ा फंक्शनैलिटी समझना चाहिए, तो आई लाइक द वे यू डिस्क्राइब्ड इट। तो ये हर गाड़ी में फिट होगा? यस सर, हर कार। ये कैमरा है? नहीं सर, हम एक्सीडेंट कैसे डिटेक्ट करेंगे, डिफरेंट सेंसर्स हम कार के आसपास लगाएंगे। तो एक सिस्टम होता है हमारा, सॉल्यूशन जो हमारा है कि ADAS ADAS सिस्टम है, जो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम है, जो यूज करते हैं वेरियस सेंसर्स और टेक्नोलॉजी, जो डिटेक्ट करता है कि एक्सीडेंट हुआ है। ADAS में हमारा ये वाईफाई की हेल्प से चलता है। इसके अंदर हम जीपीएस इंटीग्रेट कराएंगे और बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट कराएंगे कि हमें रियल टाइम में हम अलर्ट्स पहुंचा पाए हॉस्पिटल्स के पास और क्विक अलर्ट पहुंचा पाए। अच्छा, और हम तो हर गाड़ी में मल्टीपल सेंसर्स होंगे ये? यस सर, आई थिंक 4 to 5 कि आगे पीछे साइड में, मतलब 4 तो है ही है, बट डिपेंड करता है कार साइज और किस कार पे लग रहा है। छोटी कार के लिए इट वुड बी 2 to 3, जैसे अगर बड़ी है, ट्रक है, तो उसके लिए ज्यादा लगेगा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। कनक, आपने एक्चुअली एक और बात बोली, मैं आई वाज वंडरिंग कि आप उसको कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपने बोला एक्सीडेंट होता है तो हम लोग बगल से निकल जाते हैं, रुकते भी हैं तो खास हेल्प नहीं कर पाते, राइट? मान लीजिए मेरी गाड़ी में फिट है, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी और का हुआ है, कैन द सेंसर सी इट एंड रिपोर्ट इट? नो सर। ओके, इफ माय कार इज नॉट टच्ड, नो एक्शन? नो एक्शन, यस सर। ठीक है। ओके, सो बेसिकली हमारे कस्टमर्स कौन है,
हमारा मेन डायरेक्ट कस्टमर भी हो सकता है और हम ये बिजनेस मॉडल भी बना सकते हैं। तो डायरेक्ट हमारा कस्टमर्स कैसे होंगे, जो भी ड्राइवर्स हैं, चाहे हमारी फैमिली में कोई भी है, जो भी कार चला रहा है किसी भी एज का है, वो सारे हमारे कस्टमर्स हैं। और अगर हम बिजनेस टू बिजनेस बात करें तो जितनी भी हमारी ये हो गई, क्या कहते हैं, कंपनीज होगी जो कार बनाती हैं, उनको भी हम सेल कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट को भी सेल कर सकते हैं, एंड हम नाम नहीं आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज को भी सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली लोग इंश्योरेंस लेते ही हैं तो हम साथ में उसको बंडल करके भी दे सकते हैं अगर हम B2B बिजनेस बनाना। तो यहाँ पे एक पर्सोना लिया मैंने, सारा का, जो 35 एज की है, ऑक्यूपेशन मार्केटिंग मैनेजर है, लोकेशन अर्बन एरिया, फैमिली, मैरिड विद 2 चिल्ड्रन। तो उसका सबसे मेन मोटिव क्या है, सेफ्टी, कि अगर वो कार से ट्रैवल कर रही है और रोज ऑफिस जाती है, रोज ऑफिस जा रही है, तो व्हाट शी वांट की सेफ्टी सबसे बड़ा फैक्टर है, कि उसकी फैमिली भी अगर साथ जा रही है, कि अगर कई बार उसके हस्बैंड जा रहे हैं तो उसकी सेफ्टी, उनकी सेफ्टी। तो ये मेन हमारा नीड और गोल है कि वांट टू अराइव सेफली एट हर डेस्टिनेशन, seek peace of mind knowing that help can arrive quickly in a case of emergency, or value technology that can enhance safety and improve emergency response। क्योंकि आज के टाइम पे भी अगर मैं कार चलाती हूँ, अगर एक्सीडेंट हो भी जाए, मेरे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है कि मैं वहां पे, मतलब ऑब्वियसली मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी वहां पे। आसपास के लोगों को मैं कितना डिपेंड कर सकती हूँ कि भाई कौन आके मेरी क्या हेल्प करेगा, कौन मेरे घर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कि भाई एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, तो ये सॉरी कनक, रिलेटेड पॉइंट, जब एक्सीडेंट होता है हॉस्पिटल, ऑफ कोर्स अगर मेडिकल हेल्प चाहिए, कई बार एक्सीडेंट होता है पर इंजरी नहीं होती है, काफी होता है, राइट? तो उस केस में पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। वही यूज केस है तो आपको सोचना पड़ेगा। आप बोल रहे हो यू कैन डिटेक्ट कि एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, गाड़ी को खरोच आई, ड्राइवर को इंजरी हुई, अगर आप सेंस कर पाओगे तो डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी ऑफ द इम्पैक्ट आपको डिफरेंट पार्टीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। Yes, sir. I'm just flagging it. You should think about it as part of your solution. Sure, sir. So our main partners are vehicle manufacturer, sensor and GPS technology providers, emergency services and local authorities, insurance companies, and technology and data analytics firms for continuous improvement. And finally, आप कहाँ से help मांग रहे हैं? Hospitals and maybe their ambulances. Yeah, sir, वो emergency services में डाल दिया था। ठीक है, अच्छा ठीक है। What alternative they have at present? Good, हाँ। तो कुछ apps हैं जो डिटेक्ट करते हैं कार एक्सीडेंट, बट वो मैनुअल एक्टिवेशन रिक्वायर करते हैं, और कुछ हैं जो फोन सेंसर से भी डिटेक्ट करते हैं कार एक्सीडेंट, बट वो इतने रिलायबल नहीं है। एक तो मैनुअल एक्टिवेशन चाहिए कि भाई किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ है, उसको पहले कैसे पता चलेगा कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, तो वो कैसे पहले एक्टिवेट कर देगा। तो इमरजेंसी में ऐसा कि मतलब अगर एज अ यूजर मैं हूँ तो मैं वो चीज यूज नहीं करूंगी, क्योंकि उसका इतना मेन इफेक्ट आ नहीं रहा है। ऑब्वियसली कुछ ना से कुछ बेहतर है कि ठीक है हम वो यूज कर रहे हैं, बट उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कि वो चीज यूज लोग करेंगे ही करेंगे, कि भाई सेफ्टी को माइंड में रखिए। तो उनकी एक्यूरेसी भी क्वेश्चनेबल है कि इतनी एक्यूरेट नहीं है, कि क्योंकि एक तो सिस्टम पुरानी है, मैनुअल एक्टिवेशन है, तो ये हमारी मेन प्रॉब्लम थी जो अभी है। आप थोड़ा नाम बताएंगे इन एप्स के? यस सर। द वन इज कार गार्ड, जो मैनुअल एक्टिवेशन और लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है, जो मेरे को मेन प्रॉब्लम लगी। एंड सेकेंड इज ड्राइव मोड, जो फोन सेंसर से चलता है। फोन सेंसर्स के 2-3 और थे, बट थोड़ा मतलब जो अभी के टाइम पे जो चल रहे हैं थोड़े से, वो मेरे को ये 2 लगे। ये इंडियन है? यस सर। अच्छा, कोई बाहर है कोई ऐसा जो अच्छा काम कर रहा है? बाहर का सर आई हैव नो आइडिया, मैंने अभी इंडिया के टाइम। अच्छा, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। गूगल से जो दिखे मैंने वही सर्च करा। हाँ, पर आप गूगल में स्पेसिफिकली रिसर्च कर लीजिए
या चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, बिकॉज दे मे बी सम फंक्शनैलिटी यू कैन लर्न फ्रॉम देम. Yes, sir. Sure. ओके. Okay, so हमारे पास क्या डिफ्रेंशिएशन है उनसे? बेसिकली हमारा ऑटोमेटिक है और कोई मैनुअल एक्टिवेशन रिक्वायर नहीं होता. वन टाइम एक्टिवेशन है जो हम वो डाल रहे हैं कार में. रियल टाइम लोकेशन शेयर कर रहे हैं हम फैमिली मेंबर्स के साथ भी और हॉस्पिटल्स के साथ भी, ताकि हमारे पास क्विक रिस्पॉन्स आए. इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम वेरियस सेंसर्स का, जीपीएस, एक्सेलेरोमीटर्स का. एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, मतलब मेन हमारा एक्यूरेसी ही है कि अगर हम एक्यूरेट डिटेक्ट कर पा रहे हैं और टाइम पे वो इंफॉर्मेशन पहुंचा पा रहे हैं, तो आई थिंक कि बहुत ही अच्छी चीज होगी ये. एंड लास्ट इज पोटेंशियल रिडक्शन इन रिस्पॉन्स टाइम, इंक्रीजिंग सर्वाइवल रेट्स. सो कस्टमर एक्सपीरियंस हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? सो यूजर फ्रेंडली ऐप इंटरफेस फॉर इंडिविजुअल एंड फैमिलीज. हम कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखने वाले, क्योंकि हो सकता है कार एक ओल्ड मैन भी चला रहा है, बच्चे भी चला रहे हैं, तो हम बहुत इजी यूजर फ्रेंडली ऐप प्रोवाइड करेंगे. Seamless integration for vehicle manufacturers, real time alerts and detailed accident information for emergency services, कि लोकेशन जाएगी with coordinates कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है. Continuous feedback loop for users for improvement. Outreach channel, digital marketing, and I think outreach channel से ज़्यादा अगर ये लोगों को पता चलता है कि ऐसा कुछ ऐप है या कुछ मॉडल है, तो आज के टाइम पे हर एक को ये इतना दिमाग में है कि लाइफ से ऊपर कुछ भी नहीं है. चाहे वो कुछ भी हो, पैसा हो, जॉब हो, लाइफ से ऊपर कुछ भी नहीं है. तो आई थिंक इसको ना लेने का बहुत कम चांसेस है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आई थिंक कार आज के टाइम पे बहुत सारे लोग चला रहे हैं, चाहे वो उनके पास इतना पैसा भी नहीं, वो ईएमआई पे लेके चला रहे हैं, बट कार चलाना बहुत अभी बूम पे चल रहा है कि मोस्टली हर घर में 1-2 कार हैं ही है. एंड वही आउटरीच चैनल में हमारे पास सोशल मीडिया कैंपेन चला सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं डिफरेंट व्हीकल मैन्युफैक्चरर के साथ, इवेंट में जा सकते हैं, ऑटो शोज में हम दिखा सकते हैं कि भाई हमारे पास ये है, पीआर कैंपेन्स रन कर सकते हैं. दैट्स ऑल. Okay. Kanak, excellent. I really liked your presentation. 2-3 things stood out. One, I understand it's close to your heart, but this is addressing a social problem. So there is some, mission centeredness around it, which I really appreciate. I think two significant challenges. You mentioned them, but I want to summarize them for you as you get into the next stage. One, the integration with different entities, चाहे वो hospital हो, चाहे वो police agency हो या और providers हो, will be a challenge. वो app से नहीं होगा, वो human effort है. You have to plan for it. Second, मेरे को लग रहा है कि once you are done a little bit of POC, pilot आपने दिखा दिया चल रहा है, prototype बना के, I have a feeling some of the manufacturers will be interested in buying it so they can install it in their cars. Especially EV वाले, क्योंकि EV वाले are bringing a new EV आजकल कोई खरीदे जो थोड़े कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं, जो आपने बोला लाइफ बैलेंस, एनवायरमेंट बैलेंस, वो सब में विश्वास रखते हैं. So they may be actually be able to say, अच्छा, we'll charge you extra 20,000 rupees, let's say, or 30,000, but we'll bill you with this feature. So you should keep this in mind. If you are able to sell a solution to one Maruti or one Mahindra, then imagine एक डील में आपके 100 million बिक जाएंगे, as opposed to आप एक करके बेचोगे. Yes. अब सोच, वो मॉडल है बिजनेस का, आप सोचिए जरा उसके बारे में. The other, it's a thought I have as I was listening to you. Data आपके पास है तो please share करिए. I feel that fatalities are more in two-wheelers. This is my understanding. I don't have data. अगर रेशियो ऑफ fatalities देखा जाए तो शायद टू व्हीलर से ज़्यादा डेंजरस होते हैं. तो कुछ इसका एक अवतार टू व्हीलर्स के लिए भी बन सकता है कि नहीं? इट्स अ क्वेश्चन. You don't have to answer now, but you should consider that question. Sure. Yes, sir. I think बिल्कुल बन सकता है. टू व्हीलर्स भी मतलब जितना कार्स के लिए जरूरी है उतना टू व्हीलर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. शायद ज्यादा जरूरी है. हाँ, करेक्ट. यस सर. बट टू व्हीलर्स में इसको इनबिल्ट कराना, जो हमारा आइडिया है, वो थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि कार में भी ऑलरेडी बहुत सारे सेंसर्स वो यूज करते हैं कि हमारे पास वो होता है, कार बैग होता है,
तो उसके लिए भी बहुत सारे डिफरेंट सेंसर्स लगते हैं उसके अंदर। तो हमारा मेन आइडिया वही था कि हम उसी के अंदर इनबिल्ट करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट इतना हाई एंड पे भी ना जाए कि भाई इंसान नहीं कर पा रहा अफोर्ड, बट टू व्हीलर्स के लिए हम जरूर सोचेंगे, कुछ ऑल्टरनेटिव्स लेके आएंगे कि हम कैसे टू व्हीलर्स हाँ, में अब वो ठीक है, गाड़ी में ऑलरेडी होती काफी चीजें, तो मैं ऑलरेडी रेडीनेस है। अब इस टॉपिक, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। अबाउट 50 years ago, Nike and Reebok both realized कि यूएस वगैरह में, तो यूरोप में बहुत जूते वूते बिके। दे सेड ईस्ट अफ्रीका में अभी हम गए नहीं है, तो वहाँ लेट्स सेंड सम टीम्स टू फिगर आउट वहाँ पे मार्केट है कि नहीं है। तो रिबॉक ने एक को भेजा और नाइकी ने दूसरे को भेजा। रिबॉक और नाइकी। रिबॉक का बंदा आके कहता है यार ईस्ट अफ्रीका में लोग जूते पहनते ही नहीं है, नंगे पैर भागते हैं, कोई मार्केट नहीं है। नाइकी का बंदा आके कहता है ईस्ट अफ्रीका में कोई जूते नहीं पहनते हैं, हम 100% अपने जूते बेच सकते हैं। देखिए सेम रियलिटी है, अब कैसे देखेंगे आप पे डिपेंड करता है। आई एम जस्ट रिएक्टिंग। तो गाड़ी में ऑलरेडी है, आप ऐड कर सकते हैं, स्कूटर में नहीं है, वो चैलेंज भी हो सकता है और अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। I'm just sharing. But well done. Kanak, I really like your presentation. Thank you. Kanak and Prashant, right? Prashant is on the call? Yes, no sir, actually he वो ठीक नहीं था, उसकी तबीयत बहुत खराब थी, तो ठीक, fair enough. Thank you. वेलकम सर। Hello. Okay, so Saurav, you're coordinating. Who comes next? Sir. Saurav है। Yeah, Saurav, I'm आप here. हो? Yes, sir, yes. Who would like to go next? If there's any volunteer who would like to come up. It may be the whole page, it may be only GTM, it may be only segment, doesn't matter. अगर feedback अगर चाहिए तो we are more than happy to listen to you. Yeah, hello. Yes, Pranjal. Sir, I would like to present next. Go ahead, Sure, Pranjal. sure. Please. Okay. You can share your screen. Sayam. Okay, sir. Sayam presentation. Okay. Just make Safe it to zone. full screen. Yeah. Hello, sir. Our idea is Safe Zone. So we are working on the AI solution for the specially abled. We will be integrating ML models, AI, and all of these things. So the problem statement first we have the visual impairment. जो लोग देख नहीं सकते और जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए we will be working. The problem statement second we will be working. Sayam, please mute. So, the second problem statement will be we will be working with the NGOs and government organization to track the schemes for them. So here are the solution. Sorry, if you don't mind, Yes, आप please वापस जाइए, Pranjal. Yes, Again, sir. I would like others to comment on the problem statements. शिवांश, कनक, अगर आप देख रहे हैं, आप दोनों को फीडबैक मिल चुकी, आप क्या फीडबैक देंगे इसकी अब? सर थोड़ा बहुत सिमिलर केस है जैसे मेरा था, लाइक नॉट एग्जैक्टली दी प्रॉब्लम, थोड़ा यहाँ स्टेटेड है कि उनको प्रॉब्लम क्या है जो उन्हें चाहिए, मतलब सॉल्यूशन क्या चाहिए, स्लाइटली उस रेफरेंस में आई फील प्रॉब्लम 1 में। हाँ, तो जैसे आपने बोला उनको सिग्निफिकेंट बैरियर इन एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, मतलब आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि वो वेब सर्फिंग नहीं कर सकते हैं, आप बोल रहे हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? तो No, sir. It will help in their day-to-day needs. अच्छा, मतलब जनरल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। Yes, sir. Yes. हाँ, कुछ भी हो सकता है वो, चाहे मैं कोर्सेरा का कोर्स ले रहा हूँ या मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। सर मेनली वी वर फोकसिंग ऑन, शुरुआत में तो हम एमएल मॉडल ऐसे बना रहे थे कि जो ब्लाइंड है उनको मतलब वो एमएल मॉडल हम देख रहे हैं और वो इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऐप में, तो जिससे कि वो देख सके और उनके लिए कोई और ना रहे, वो अकेले ही अपने फोन से कर सकें। हाँ, तो हमने ऐसे एमएल मॉडल, नहीं, आपने एमएल मॉडल और सोल्यूशन में चलिए, तो प्रॉब्लम क्या थी इनकी जो देख नहीं पाते, क्या प्रॉब्लम है उनकी, सॉल्व कर रहे हैं आप? इसी को रीवर्ड करिए।
हाँ सिंपल है, अभी बोला जो आपने, जो देख नहीं पाता है, हाँ ये सर, अगर उसको अपनी सराउंडिंग्स के बारे में नहीं मालूम है, अगर वो किसी के साथ भी नहीं है, हेलो कोई अगर साथ में नहीं है, तो उसको उनको इंजरी या हर्ट का रिस्क बढ़ जाता है। ए या बी, हेलो जहाँ वो जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम है आपकी, राइट? कि उनकी डिपेंडेंसी ऑन पीपल, कई बार डॉग्स भी लेके चलते हैं, राइट? पीपल डॉग्स आप रिड्यूस कर रहे हैं। यस सर, फेयर इनफ, फेयर इनफ। यस यस, ठीक है, चलिए आपके सोल्यूशन में आते हैं। So for the first problem statement, we have a safe zone as a mobile application that would create leverage the AI ML for them. ओके And for the second one was कि हम NGOs और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ट्रैक करेंगे कि वो जो स्कीम्स वगैरह जो स्पेशली एबल्ड के लिए बना रहे, क्या वो उन तक पहुंच भी पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि उनको जो स्केल करना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उनके लिए वर्क करेंगे एज अ डेटाबेस। ओके नेक्स्ट, so our primary segment will be the specially abled people who are mainly visually and hearing impairment. The second segment will be NGO, government organizations, or it could be caregivers. The tertiary, we have special helping to support empower. We are the tertiary segment will be the specially organizations that are working towards the specially abled. The business type is B2C and B2G both. ओके सर फर्स्टली वी आर मतलब अभी हम जो फोकस कर रहे हैं मेन पर्सोना जो कस्टमर का, वो प्रेफरेबली 14 से ऊपर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अभी काम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम एनजीओ से भी अभी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ एनजीओ ने भी हमें आंसर भी किया है उस चीज के लेकर कि वो हमारे साथ वर्क करना चाहते हैं इस चीज में, तो हम उस साइड से शुरू कर रहे हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब हमारा जो अभी हमने जो प्रोटोटाइप बनाया था वेबसाइट का, अभी हमने बनाया था, जो ऐप अभी हमारा बन नहीं पाया, तो हमारा जो सेव जोन ऐप है उसमें क्या क्या हम चीजें डालेंगे, उसमें पहला है अपॉर्चुनिटी सेक्शन, जो सिर्फ स्पेसिफिकली टेलर्ड होगी उनकी अपनी प्रोफाइल्स के हिसाब से, जैसे कि जो वो जॉब सिलेक्शन करते हैं या जो जिस फील्ड में उनको जाना है उस हिसाब से। उसके बाद सेकंड विल बी स्कीम सेक्शन, स्कीम्स मतलब जो उनको स्कीम्स प्रोवाइड हो रही हैं और जो गवर्नमेंट उनको देना चाहती है, उस हिसाब से हम उनको उनकी टेलर के हिसाब से टेलरिंग करेंगे उसकी। और नियर बाय फैसिलिटी सेक्शन, ये हमारा फ्यूचर गोल है कि जैसे कोई आसपास कोई भी ऐसा वो वर्कशॉप टाइप का लग रहा है, कोई ऐसी चीज लग रही है, तो वो उन तक उनके पास पहुंच पाए। और रीड अलाउड फीचर्स, ये रीड अलाउड फीचर्स जैसे हमारे फोन में नॉर्मली होते हैं, अगर जैसे कोई ब्लाइंड पर्सन है उसके फोन में रीड अलाउड का फीचर होता है, तो ये रीड अलाउड का फीचर हम अपने ऐप में और अपनी वेबसाइट में भी इंटीग्रेट करेंगे, ताकि वो जब वेबसाइट को एक्सेस करे या वेबसाइट को जाए या ऐप पे जाए, तो वो जो सारे फीचर्स है वो उसको रीड अलाउड हो सके। और साइन लैंग्वेज कन्वर्टर, ये एमएल मॉडल है जिसमें जो साइन लैंग्वेज है वो कन्वर्ट होती है, जैसे कई बार जो मतलब जो हियरिंग प्रॉब्लम है जिनके साथ, वो किसी के साथ नहीं होते, तो वो समझा नहीं पाते किसी को, तो वो अपने फोन पे जैसे साइन लैंग्वेज वगैरह बनाएंगे और उससे वो जो लैंग्वेज है वो कन्वर्ट होके एक सेंटेंस बन जाएगी, जिससे वो किसी को भी दिखा सकेंगे, क्योंकि साइन लैंग्वेज जो होती है वो सबको हर जगह नहीं आती, और वो मतलब एरिया टू एरिया वेरी करती है, मतलब जैसे इंडिया में हमारे पास साइन लैंग्वेज अलग होती है और फॉरेन में लैंग्वेज जो है साइन लैंग्वेज वो अलग होती है हमारे पास, तो वो एक ऐसा बनाएंगे कि वो इंडिया टू मतलब अगर वो करना चाहे, कन्वर्ट करना चाहे, तो वो भी कर सके। और ऑब्स्टेकल डिटेक्शन, ये हमारा जो विजुअली इम्पेयर्ड होंगे उनके लिए ऑब्स्टेकल डिटेक्शन हमारा एमएल मॉडल यूज होगा, जिसमें ऑब्स्टेकल जैसे कि वो फोन का कैमरा ऑन रखेंगे और सामने अगर कोई जैसे कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है तो वो उसको बता सकेगा फोन पे, ताकि उसके अगर वो किसी के साथ भी नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। ठीक है, ये अभी कितना डेवलप हो चुका आपका प्रोडक्ट? सर हम एमएल मॉडल को, जो हमारे पास एमएल तो मॉडल है, हम इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम ऐप में करेंगे, अभी हमारा सिर्फ वेबसाइट ही बन के तैयार हुई है, मतलब सैंपल वेबसाइट है। ओके नेक्स्ट,
तो सर ये हमारी यूजर जर्नी स्टोरी थी कि मतलब हमने कैसे एक पर्सन है विजुअली इम्पेयर्ड है, हमने उनसे कांटेक्ट किया और कैसे वो उसको मतलब जो हमारा जो ऐप है या फिर जो वेबसाइट है वो कैसे एक्सेस करेंगे। तो पहले मतलब वो विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन है और उन्होंने सेफ जोन को मतलब एक्सेस करा। तो पहले रीड अलाउड फीचर मतलब आता है उसमें, तो वो रीड अलाउड फीचर उन्होंने वो किया, एक्सेस किया और उस पे स्कीम्स का यूज करके उन्होंने ग्रांट वगैरह जो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह है उस पे अप्लाई करना है तो वो अप्लाई कर सकती है। और नियर बाय फैसिलिटीज से हमारे डिसेबिलिटी फ्रेंडली स्पेसेस जो सिर्फ और सिर्फ डिसेबिलिटी के लिए बने हैं, जैसे कि जो वॉशरूम्स वगैरह हैं जो स्पेशली उनके लिए बने हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज सॉरी क्वेश्चन, मैं यूजर जर्नी समझ रहा हूँ। ये फोन से यूजर, राइट? इट्स अ फोन ऐप। यस सर, फोन ऐप। तो पहली बार कैसे यूज करेगी आयशा? उसको नहीं पता कि सेफ जोन ऐप कहाँ पर है, मैं क्या बटन दबाऊं, तो वो शुरुआत कैसे होगी? मैं सोच रहा हूँ कि किसी की हेल्प सर चाहिए। मतलब नहीं सर, उसमें जो हमारे फोन में भी नॉर्मली रीड अलाउड फीचर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड के लिए यूज होते हैं, ब्लाइंड लोग उसे यूज कर सकते हैं। एंड दे नो हाउ टू टर्न इट ऑन, राइट? विदाउट हाँ, लुकिंग। वो टर्न इट ऑन कर सकते हैं और उसमें बताता है कि जैसे कि एक पेज खुलता है, एक पूरा पेज खुलेगा तो उसमें जितने भी एप्स हैं मतलब अलग अलग है उनका नाम आ जाएगा। तो जैसे ही जो नाम आएगा वो उस पे क्लिक करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा या यस रहता बोल है। के, या यस बोल, क्लिक तो नहीं कर पाएंगे पर यस बोल सकते हैं, राइट? नहीं सर, वो क्लिक ही करते हैं उस चीज मतलब उसको मतलब सोचिए जरा, जो ऐप होता है उस सोचिए पे क्लिक। नहीं, सोचिए जरा, if somebody who can't see, मैं किस ऐप पे क्लिक करूं? मुझे पता नहीं स्क्रीन कहाँ हाथ डालूंगा ना, आई डोंट नो। सर नहीं, वो मतलब मैंने मेट्रो में ऐप पे यूज करते हुए देखा है तो वो क्लिक करके ही करते हैं, मतलब उनके मतलब उनका जो भी हो, मैं वैसे नहीं जानता, बट वो क्लिक करते हैं और उसी से खोलते हैं, वो रीड अच्छा, अलाउड ठीक है, फीचर से ही खोलते हैं। ठीक है। तो मेरा एक्चुअली एक ये जनरल रिकमेंडेशन आने वाली थी कि आप विजुअली इम्पेयर्ड, हेयरिंग इम्पेयर्ड एटसेट्रा से बात के लिए सोल्यूशन कर रहे हैं। हाउ मेनी सच पीपल हैव यू इंटरेक्टेड विद फॉर दिस प्रोजेक्ट? सर अभी विजुअली इम्पेयर्ड एनजीओ में हम गए थे, उनसे बात करी थी तो उन्होंने तो यही बताया था कि ऐसा अगर ऐप हो तो अगर केयर गिवर्स, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास केयर गिवर्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनके पास केयर गिवर्स नहीं होते हैं। कई बार मैंने भी किसी को जैसे पहुंचाने की कोशिश करी है कहीं पे, तो वो यही कहते हैं केयर गिवर नहीं होता तो हमारे साथ कोई ना कोई फोन पे होना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत ऐसी बिजी जगह होती है जैसे राजीव चौक वगैरह हो गया, तो काफी बिजी होता है, लोग वहाँ पे मदद नहीं करते किसी एक दूसरे की, तो वो बहुत ज्यादा उनको नीड है इस चीज की, ऐसा फोन ऐप की, एज अ फोन ऐप की वो अपने फोन पे डिपेंडेंट हो सके, ना कि किसी पर्सन पे, क्योंकि एज अ पर्सन वो नहीं डिपेंडेंट हो सकते हर जगह किसी बात पे। ये भी एक चीज है। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क असाइन करूं? यस सर। आप 5 लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड हो और 5 लोग जो हेयरिंग इम्पेयर्ड हो, यस सर। उनके साथ 20-20 मिनट बताइए, जस्ट ऑब्जर्विंग वो डेली लाइफ। कोई वॉक कर रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, वो कैसे अपनी जिंदगी बिताते हैं, आपको ऑब्जर्व करना है। आपको ये नहीं पूछना आप क्या कर रहे हो, आपको ये सोल्यूशन दे दूं, आपको ऑब्जर्व हाँ करना है। आप करेंगे यस सर। तो आपका यस सर। आपका आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी शार्प होगी उतना ही शार्प आपका ऐप होगा, उतना ही इफेक्टिव आपकी एमएल मॉडल होगी। उतना यूजर एक्सपीरियंस अच्छा कर सकेंगे हम उतना लोग। ही करेंगे। नेक्स्ट। तो सर जो हमारा ऐप है वो सोशल मतलब उसके लिए है, सोशल हम वर्क करना चाहते हैं ताकि जो स्पेशली एबल्ड भी हैं उनको भी अलग महसूस ना हो नॉर्मल लोगों से। नेक्स्ट। ये सर हमारा रेवेन्यू मॉडल है, प्राइमरी सब्सक्रिप्शन बेसिस होगा। जो बेसिक फीचर होगा उसमें तो ज्यादातर हम कोर फीचर्स देंगे, और प्रीमियम हमने जो रखा है उसमें हम स्पेशल फीचर्स देंगे, जैसे कि कई बार कुछ ऐसी मतलब अगर हम आगे फ्यूचर में इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो हम ये रखेंगे कि जैसे दवाई का टाइम होता है तो वो हम इसमें बताएंगे कि उसका दवाई का टाइम हो रहा है, उसने कितने बार दवाई खाई, जैसे कि अगर स्पेशली कुछ बीमारियों को देखा जाए तो उसमें पार्किंसंस आता है, पार्किंसंस में भूलने की बीमारी ज्यादा होती है और उसमें हाई डोजेस लगती हैं ताकि बंदा खा सके। अगर उसके पास केयर गिवर नहीं है तब भी वो ऐप से हमारे वो कर सके, प्रीमियम ऐप से, तो वो प्रीमियम मॉडल हम इसमें बना रहे हैं। और जो हमारा सेकेंडरी रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन होगा वो हमारा गवर्नमेंट और एनजीओ से होगा, क्योंकि हम उनके लिए मेनली वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनका डेटाबेस लेकर के हम उसको यूज कर रहे हैं।
ताकि हम उनको बता सके कि वो जो स्कीम्स और अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं स्पेशली एबल्ड को, वो उन तक पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक एक प्रॉब्लम है कि वो उन तक नहीं पहुंच पाती और वो बीच में ही कहीं रह जाती है और वो वहां तक नहीं पहुंच पाती, मतलब एक ब्रिज नहीं बन पाता गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ के बीच में, ताकि वो उनको वो दे सके जो वो देना चाहते हैं उनको। तो ये सेकेंडरी है हमारा। और हमारा डेटा इनसाइट्स वगैरह रहेगा, जो हमारा प्रीमियम है उसमें ये सब कुछ रहेगा। हम ट्रेनिंग और सपोर्ट भी देने की कोशिश करेंगे। और कॉस्ट स्ट्रक्चर है हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारा सर्वर कॉस्ट जो हमारे डेटाबेस के लिए लगेगी, सैलरीज और ऑफिस स्पेस वगैरह, ये हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा। वेरिएबल में हमारा अलग अलग कस्टमर पर टिकट ये सब चीजें रहेंगी। और मतलब सर मैंने एक और चीज देखी थी कि जैसे कि ऐसे ऐप्स होते हैं, मैंने मतलब फॉरेन में देखा था कि जो डिसेबल के लिए एप्स वर्क कर रहे हैं वो उनका डेटाबेस लेके एनोनिमसली वो उसको सेल करते हैं, मतलब सेल करते हैं। और वो यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए उन कंपनीज को सेल करते हैं जो उसका, जैसे कि अगर कोई पर्सन चल नहीं सकता तो इस तरीके की व्हीलचेयर बनानी ताकि वो अच्छे से चल सके हर तरीके से। जैसे इंडिया में हमारे पास जो रोड्स हैं वो काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ हैं, तो वो उस तरीके की व्हीलचेयर बनाना ताकि वो उबड़ खाबड़ मतलब जो जगह है उसको भी वो मतलब वो कर सके, चल सके आराम से। और फॉरेन्स में नॉर्मल स्मूथ रोड्स होती है तो उसके हिसाब से व्हील्स रहेंगे। तो ये भी एक वो हो सकता है कि हम जो डेटाबेस हमारे पास आएगा वो डेटाबेस हम डेटाबेस उनको जो कंपनीज है उनको बता सकेंगे। और वो यूजर एक्सपीरियंस जो वो डिवाइसेस बना रहे हैं, अगर वो जैसे कि मतलब जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उनके लिए अगर वो डिवाइस बना रहे हैं तो वो किस तरीके का होना चाहिए, कितना अगर उनको उनका बजट कितना होना चाहिए ताकि वो बना सके उसको। तो ये भी हमारा एक आगे का फ्यूचर गोल है कि हम उसको डेटा को सेल कर सके मतलब बाद में। ये भी हमारी एक चीज है। यस सर। नेक्स्ट सर, ये हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हम आसपास हमारे वर्कशॉप्स होंगी या कोई भी ऐसी चीज होगी जो उन तक पहुंचनी होगी, वो उनको अपने आप उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे हम ये मान रहे हैं कि अगर 5 किलोमीटर उनके रेडियस में 5 किलोमीटर के अंदर दायरे में कुछ ऐसी चीज हो रही है जो उनसे रिलेटेड है और उन तक पहुंचानी है, क्योंकि जो वर्कशॉप्स और ऐसी फ्री चीजें होती है, जैसे कि अगर हमारे पास ब्लड सैंपल या कुछ ऐसी चीज हो रही है तो हमें नहीं पता चलता, जब हम बाहर निकलते हैं हमें तभी पता चल पाता है। तो वो हम ऐसा करना चाहते हैं कि वो नोटिफिकेशन उन तक पहुंच पाए 5 किलोमीटर के रेडियस में उनके आसपास के। और आगे हम चल के पार्टनरशिप्स बनाना चाहते हैं हेल्थ केयर और हॉस्पिटल्स के, ताकि हम जैसे कि मैंने भी बताया पार्किंसंस की दिक्कत होती है तो उसमें हमें बिल्कुल हॉस्पिटल्स के साथ रहना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो तुरंत उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ये भी हमारा एक फ्यूचर गोल है कि वो पार्टनरशिप हम हॉस्पिटल्स के साथ बना सकें। और यूजर एक्सपीरियंस हम बढ़ाना चाहते हैं एडवांस फीचर्स के साथ, जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी का हम यूज करके विजुअल और गाइडेंस देना चाहते हैं नेविगेशन और ऑब्स्टेकल के लिए। जैसे कि देखा जाता है कि उनको एक ट्रेनिंग तरीके से देना है ऑगमेंटेड रियलिटी में, तो वो भी हम आगे के लिए यूज करना चाहते हैं। और एक्सपेंडेड टू न्यू मतलब पहले तो हम इंडिया से शुरू करना चाहते हैं और बाद में इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि ये हर एक रीजन तक पहुंच सके और ये एक मतलब स्टैंडर्ड बन सके कि ये हर जगह पे यूज हो जाए। तो ये हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं। नेक्स्ट, दिस इज इट सर। Okay. Okay. Anybody has a comment? I have a couple of comments to make. But anybody else? Any questions, comments for Pranjal and team? Which year are you guys in? I'm in third year and all the others are in second year, sir. We are in second year, sir. Good evening, sir. Hi. Okay, so I have two observations. One, I think it's a brilliant mission to be on. You will really change lives. So I'm glad you're choosing this. My concern is related to boiling the ocean. क्या कमेंट याद है जो मैंने बोला था? देखिए, हाँ, आपने बोला हम सोल्यूशन कर रहे हैं ब्लाइंड के लिए, हेयरिंग इम्पेयर्ड, फिजिकली चैलेंज, 3-4 तरह के लोगों के लिए और हर के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। आई थिंक ये लॉन्ग टर्म मिशन अच्छा है आपका। माय एडवाइस विल बी टू पिक वन, जैसे विजुअली इम्पेयर्ड है एंड उनकी क्या नीड है जो आप होमवर्क करने वाले हो, राइट? उनकी टॉप 3 नीड एड्रेस करिए, पहले समझिए। आप लर्न करेंगे, आपका मॉडल लर्न करेगा, आपकी मार्केटिंग लर्न करेगी, देन उनकी बाकी
5-6 नीड्स एड्रेस करी, देन यू से ओके नाउ अब हम ब्लाइंड पीपल को अच्छे से सपोर्ट कर पा रहे हैं, लेट्स एक्सटेंड इट टू समबडी एल्स. दैट्स माय रिकमेंडेशन. यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट डोंट बी केयरफुल, डोंट टेक ऑन टू मच. आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे. Okay, sir. Yeah, but well done. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, Saurav, we're back on. Saurav गप्पे मार रहे हैं, देखो इग्नोर कर रहे हैं. लग रहा है. आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक बात नहीं है. No, sir, no. Actually, they just had a call for the other workshop. So, yes, sir. I guess there is no other team that we have, or do we have any volunteer for the next thing? Anyone who would like to pitch, like who would like to share their deck that they have prepared or talk about in general? Anyone? Or if you have any questions, I'm happy to give them to answer. Okay, I guess it's late in the day. I also realized you guys are in the middle of the exams, so I really appreciate your ideas. Are amazing. Right, you're on the right track. Keep talking to people, keep learning, keep taking inputs. Of course, final decision आप ही की है. आप इतना करेंगे, कैसा करेंगे. But inputs जरूर process करिए. I want all of you to be able to convert this into something real. So next stage is very vital, product and prototyping, right, Saurav? बहुत critical है. अच्छे से उसमें please involve रहिए. जितना वो involve होना इसीलिए नहीं कि आप एक perfect product बना पाएंगे, आप नहीं बना पाएंगे. But अगर आप working prototype बना लें, more importantly, if by doing that you're able to understand your customers' needs better, trust me, that will help you in the long term. Okay, so with that, Saurav, I think we're done. But thank you. Sure, sir. Sir, if anyone would like to connect with you, like for like maybe in-person mentoring or something of that sort, because like we got some of the queries. Okay. Like if in that case, like what would be the best way to connect with you, sir? Like is it through LinkedIn or through email Definitely आप ID? LinkedIn पे तो connect कर लीजिए और मैंने अपनी email chat में डाल दी. ठीक है, Sir, I mail you 2 or 3 days before, I guess. I will take a look. आएगा. If you mail me, I will respond. Don't worry. I will. May not be right away, but I will get back to you. No, thank you. And if I don't, LinkedIn पे remind करा देना मुझे. Okay, sir. एक message डाल दो. I take that very seriously. Also, sir, can we have 2 minutes of yours after this meeting? Like in this Sure. meeting only? I can stay back. Okay, thank you, sir. All right, everyone. I would just request each and every one of you to kindly just scan this thing and let me just share my screen and share your valuable feedback. So it is just necessary for us and for the speaker as well to just to know that how the sessions that we have planned so far are going as in line of what the workshops are of right now. So kindly just scan this thing, give us your feedback, and we'll keep a note of it so that we can plan maybe better workshops in the future and all. So yeah, thank you everyone. Thank you so much for your time. And yeah, Shivans, you can stay maybe. Others, after scanning this thing, you can just maybe drop off. Thank you so much, Batra sir. Thank you so much for your valuable time that you are given to these teams, innovators, and to NASCOM Foundation as well. It was really like interactive to glad to know you as a person and as a resource person that we have for these teams. So yeah, thank you so much, sir. A pleasure for me to interact with everybody. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you, everyone.